In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, to whom we all have to turn back. Students, you know that we have started the series of grammar, and the previous 4 lectures, we talk about parts of speech related to this, some important sentences. Same is the case about noun and its types, and personal pronoun we did discuss. Today we are talking about another type of pronoun. आज हम जो बहस करने जा रहे हैं वो हम प्रोनाउन के दूसरी टाइप के बारे में बहस करते हैं. एंड व्हाट इज दैट, और वो क्या है? दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. Indefinite pronoun is a pronoun which refers to someone or something generally. It refers to someone or something generally, not particularly. Indefinite pronoun वो pronoun है जो किसी को आम तौर पर इशारा करता है, किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन आम तौर पर इशारा करता है, या किसी को आम तौर पर निस्बत करता है, मखसूस तौर पर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, if I say someone has come to the class, you see in this example, someone has come to the class. What is the indefinite pronoun here? Someone. Here someone is indefinite pronoun because it refers to someone generally. I don't know, either someone is male or female, either someone is small or just like big. So this is the difference. Let me give you another example. Anyone can ask me. Anyone can ask me. What is indefinite pronoun in this sentence? Very good. Anyone can ask me. Here anyone is indefinite pronoun. Another example is, for example, anybody can answer my question. Who will tell me now? Anybody. Anybody is indefinite pronoun. So somebody, anyone, anybody, these are called indefinite pronouns because it refers to someone or something generally. And I will share my story with you that it could be better understandable to you. When I was first entered to the University of Sawat in 2015, August 2015, and someone has brought for me like a sophisticated mobile, understand, and it had 20,000 price. And when I was returning back from the university, it was my past day. I had no mobile in my pocket. And unfortunately, I was uttering the prayer. And I remember that I had mobile phone in my side pocket. But when I just turn away salam to the right side and the left side, and then I check my mobile, I had no mobile. So then I wrote this sentence in my small grammar book as well, that someone has stolen my mobile. Understand? So someone is what? It is indefinite pronoun. Any question? No, sir. Okay. Then we have relative pronoun.
जी चलो ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? Relative pronoun is a word which connects one sentence with another. A relative pronoun is a pronoun which connect one idea with another, one sentence with another. Relative pronoun वो pronoun है जो एक sentence दूसरी sentence के साथ मुंसलिक करता है, जोड़ता है। समझ आई? So that is called relative pronoun. And this relative pronoun is very significant for those who are translators. Translators के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये relative pronoun. So I'm going to tell you a bit in detail about relative pronoun. Let me give some examples first. I saw a student who was intelligent. Understand? I saw a student who was intelligent. मैंने एक स्टूडेंट देखा जो ज़हीन था. I saw a student, it is one sentence. Who was intelligent, it is another sentence. Clear? So now what is a relative pronoun? Who. Because this who connect the past sentence with another. I saw a student who was intelligent. So this who is what? Relative pronoun. What is the meaning of who here? जो. I saw a student, मैंने एक स्टूडेंट देखा who was intelligent, जो ज़हीन था. तो यहाँ हु का मतलब ये नहीं होगा कि I saw a student, मैंने एक स्टूडेंट देखा who was intelligent, कौन ज़हीन था. नहीं, इसका मतलब ये है मैंने एक स्टूडेंट देखा जो ज़हीन था. तो ट्रांसलेशन में बहुत ख्याल रखना होगा. समझ आई? Here is the meaning of who is जो. But if I say I saw an elephant, then I will not say who. Understand? अगर मैंने कहा कि मैंने एक हाथी देखा, dash was fat. मैंने एक हाथी देखा जो मोटा था, फॉर एग्जाम्पल. I saw an elephant, तो अब मैं who नहीं लगाऊंगा. I saw an elephant which was fat. अगर आपने हु लगाया ना तो लोग ये सोचेंगे कि उसने ह्यूमन बीइंग का, इंसान का मजाक उड़ाया है, कि उसने इंसान को हाथी कहा है. समझ आई? तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना. आई सा एन एलिफेंट विच वाज फैट. एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए फिर हम विच का इस्तेमाल करेंगे. और विच का माने भी है जो. सारे विच का माना क्या है? जो. लेकिन विच का माना जो है, जो हम एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. और हु का माना जो है इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये हम ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने कहा कि आई सा अ स्टूडेंट विच वाज इंटेलिजेंट, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है. समझ आए? तो लिहाजा ह्यूमन बीइंग के साथ हु लगाना है. अगर आपने हु की जगह विच लगाया तो गलत है. इसी तरह आई सा एन एलिफेंट, अगर आपने एलिफेंट की जगह हु लगाया तो क्या है? गलत है. विच ठीक है. अब समझ आई? You can also write another sentence, for example. हाँ, यस, मैंने कहा बेजान चीज के लिए आप भी लगा सकते हैं. I saw a chair which was white. और बेजान चीज के लिए आप that भी लगा सकते हैं. I saw a chair that was for example white, black. Clear? तो that की भी यहां लुग़वी माने क्या है? जो.
हाँ, आई सा स्टूडेंट दैट वाज इंटेलिजेंट, तो अब आप दैट ह्यूमन बीइंग के लिए भी लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी आई सा अ स्टूडेंट दैट वाज इंटेलिजेंट. क्लियर? Okay, let me write another sentence which connects another sentence with the help of relative pronoun. I like a student whose character is good. I like a student whose character is good. So here you see, what is the relative pronoun? Good. Whose is the relative pronoun? And what is the meaning of whose? जिसका. अगर whose सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए ना तो फिर किसका मीनिंग देता है, लेकिन यहां whose का माना क्या है? जिसका. I like a student whose character is good. मैं वो स्टूडेंट पसंद करता हूं जिसके अखलाक, समझ आई? जिसकी अखलाक अच्छी हो सारी. तो यहां whose का मतलब जिसका या जिसकी है. Now there is another. I went to college where I saw my students. I went to college where I saw my student. Where? What is the relative pronoun here? Where. What is the meaning of where here? Where का माना क्या है यहाँ? मैं कॉलेज गया ना. हाँ, तो what is the meaning of where? इन स्टूडेंट. मैं कॉलेज गया, मैंने स्टूडेंट्स देखा. तो what is the meaning of where? जहां. मैं कॉलेज गया जहां मैंने एक स्टूडेंट देखा. जहां. What is the meaning of where here? जहां. लेकिन जब where स्टार्ट में आ जाए तो माने क्या है? कहा. तो I went to college where I saw my student. So here the meaning of where is जहां. It means the meaning of here is there. Yeah? I went to college, there I saw my students. Any question? Okay. Done? Shabash, quickly complete it. After that, we have demonstrative pronoun. After that, we have demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun is a pronoun which is used to point out someone or something. Demonstrative pronoun is a pronoun which is used to point out something. Demonstrative pronoun वो pronoun है जो किसी चीज को इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है. A pronoun which is used to point out someone or something, that is called demonstrative pronoun. And they are four in number. और तादाद में कितनी है? 4 है. The past one is this. Yes. For example, that is my brother. Clear? So that is demonstrative pronoun. That क्या है? Demonstrative pronoun है. क्यों demonstrative pronoun है? Because it is used to point out someone. ये किसी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है. हमारे साथ इशारा करने के लिए 4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. 2 सिंगुलर है और 2 प्लूरल है. That is my brother. वो मेरा भाई है. This is my brother. This is my brother. हाँ, ये मेरा भाई है. समझ आई? Now you know I already discussed how to use this, that and those blah blah blah.
And also, those are my brothers. Those are what? Yes. And these are my brothers. So this, that, these and those, therefore are called demonstrative pronouns. We have reflexive pronoun. Another type of pronoun is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive pronoun is a pronoun when the subject is affected by his own action, that is called reflexive pronoun. When subject is affected by his own action or by its own action, that is called reflexive pronoun. For example, he hurts himself, or he injured himself. When subject is affected by his own action, जब subject को, पाइल को, काम करने वाले को अपने अमल की वजह से कोई नुकसान पहुंच जाए ना, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. अब देखिए, ही हिट्स हिमसेल्फ, ही इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी किया, उसने खुद को जख्मी किया. तो ही हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है. उसने खुद को क्या कर दिया? जख्मी किया. तो ये ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम कर रहा था और उसके काम की वजह से उसे नुकसान पहुंच गया. समझ आई? ओके. नाउ there is a formula. Just if there is he, the ending of reflexive pronoun would be himself. If there is she, then the ending would be herself. If there is they, the ending would be themselves. If there is you, the ending would be yourself. For example, he injured himself. Now put she injured herself. समझ आई? They injured themselves. मतलब मुखालिफ नहीं आएगा, they will be similar, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सिमिलर होगा. ऐसा ना क्यों कहते कि he injured herself, it will be wrong. They will not be opposite, it will be the same. There will be the similarity and agreement of subject with the object in this. So if you are talking about he, it must be himself. If you're talking about she, it must be herself. If you're talking about they must be themselves. If you're talking about we, for example, we injured ourselves. You injured. No, you injured yourself. Any question? If you have any question, ask me. Shabash, quickly. So we talk about reflexive pronoun. Reflexive pronoun is a pronoun when the subject is affected by his or its own action, that is called reflexive pronoun. And I gave you some examples, as he injured himself. So when there is he, then reflexive pronoun must be himself. Object must be similar to the subject action. Done? Okay. The last one, but not the least, that is interrogative pronoun. Interrogative pronoun.
Interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask questions. ये वो प्रोनाउन है जो हम क्वेश्चंस यानी सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? Whose book is this? Whose book is this? Sorry. Whose? That's not related in it. Who is this? Is that clear? Interrogative pronouns are those pronouns which we use to ask question, and there is the difference between interrogative pronoun and interrogative adjective, and I will tell you the main difference between them. And similarly, there is a main difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. I am going to tell you an adjective. Any question? Now, let's talk about adjective. What is adjective? Adjective is a word. It is used to modify a noun or a pronoun. Adjective वो word है, वो लफ्ज है जो noun या pronoun को modify करता है. What is mean by modify? Modify mean to add something. That is the literal meaning. Modify का मतलब है कुछ इजाफा करना. किस चीज के बारे में इजाफा करना? नाउन के बारे में इजाफा करना या प्रोनाउन के बारे में. लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आसानी के साथ ये है कि एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो हमें नाउन के बारे में मजीद कहता है या प्रोनाउन के बारे में. तो आसान डेफिनेशन एडजेक्टिव का ये हो गया कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ये वो लफ्ज है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताता है. क्या बताता है? मजीद बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है. इट टेल्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात देते हैं. सो ये क्या है? एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल, he is intelligent or an intelligent. He is an intelligent student. वो एक ज़हीन तालिबुल इल्म है. अब देखिए, मैं कहता हूं he is a student. He is a student. अब ये एक सेंटेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. वो एक तालिबुल इल्म है, लेकिन ये an intelligent, yes, ये एडजेक्टिव है. यस, ये एन इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है और ये हमें मजीद बताता है किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में. कि वो स्टूडेंट है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है? ज़हीन. तो ये एन इंटेलिजेंट, दैट इज एडजेक्टिव. इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. एनी क्वेश्चन? अनदर एग्जांपल, he is a happy person. He is a happy person. Now you see, if I say he is a person, it's also fine. वो एक आदमी है, लेकिन कैसा आदमी है? Happy. So this happy modifies, this happy further gives additional information about the person. So that's why it is adjective. But now, how to identify and how to know or recognize or indicate or understand adjective in a sentence? हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि adjective है? Generally and mostly
एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन। आमतौर पर एडजेक्टिव नाउन के पीछे आता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट से पहले क्या आया है? इंटेलिजेंट। तो ये क्या है? हाउएवर समटाइम इट कम्स आफ्टर द नाउन, ये बाज़ वक़्त नाउन के बाद भी आता है, नाउन के बाद भी आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज हैप्पी और असलम इज हैप्पी, so now you see there is no another word, like I can't say he is a happy man, just he is happy. So happy is what? Adjective. Aslam is happy, again happy is what? Adjective. But there is no noun related or connected with happy. happy के साथ connected मुंसलिक कोई नाउन मैंने नहीं लिखा है, तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि adjective हर वक्त will be before a noun, के हर वक्त नाउन से पहले होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेहतरीन तरीक़ा समझने के लिए ये है कि अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव में या दोनों की अंडरस्टैंडिंग में मसला हो, तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि आप दोनों पिकअप करें, सेलेक्ट करें, यस, और फिर कंबाइन इस्तेमाल करें। मसलन एक हमारे साथ है बैग और एक हमारे साथ है वाइट, या एक हमारे साथ है ब्लैक और एक हमारे साथ है वाइट। अब आपको पता नहीं कि ये वाइट एडजेक्टिव है या ये बैग एडजेक्टिव है, तो दोनों आप कंबाइन करके आप उनका प्रोनाउंसिएशन करें, यानी पढ़ ले। मैं कहता हूं ना बैग वाइट और वाइट, सॉरी, हाँ, बैग वाइट और वाइट बैग, कौन किस तरह अच्छा लगता है बोलने में? वाइट बैग। अगर मैं कहता हूं ना सफेद दीवार और दीवार सफेद, सफेद दीवार, तो जो पहले आया वो एडजेक्टिव है, जो बाद में आया वो नाउन है। इज इट क्लियर? However, this is just technical one. Another thing is that adjective mostly come after linking verb. ये linking verb के बाद अमूमन आता है। अब linking verb क्या है ये हम वर्ब में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मसलन ये he is happy, he is है linking verb है, और linking verb उस वक्त आता है जब हमारे साथ सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो। लिंकिंग वर्ब हम उस वक्त लगाते हैं जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो। अब इस सेंटेंस में आप मेन वर्ब नहीं देख सकते, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ही इज गोइंग, अगर मैंने कहा ही इज गोइंग, तो यहां ही इज गोइंग में मेन वर्ब है, वो गोइंग है, तो इसलिए इज लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यह ही इज हैप्पी और यहां मेन वर्ब नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आया है वो एडजेक्टिव है, ही इज हैप्पी। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, ही इज अ मैन। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? Now let's go to the topic, the types of adjective with detail. Winsor has not come. Winsor is not coming until I will carry on my lecture. Fine? Easy or difficult? Easy? The first type of adjective is adjective of quality. Adjective of quality. Adjective of quality tells us about the merit or demerits of someone. ये हमें someone or something, ये हमें किसी चीज की खूबियां या खामियां बताते हैं। demerit mean खामियां, demerits, and merit mean qualities, खूबियां। Adjective of quality tells us about the merit or demerit of someone or something. For example, if you say he is very honest, he is very honest boy, he is very
truthful boy or trustworthy. He is very trustworthy person, for example, or boy. या truthful लिखिए या trustworthy. So he is very trustworthy person. Here I am talking about the quality of a person. So this trustworthy or truthful or honest, this is called adjective of quality. Let me talk about the demerit of someone. किसी की खामी के बारे में जब आप कहते हैं कि वो क्या है, he is very stupid person. वो बेवकूफ है, बहुत बेवकूफ है. So here यहाँ very stupid or stupid, the bad quality of someone, or yes, the bad quality. आप किसी चीज की भी खामी बता सकते हैं. This watch is good. ये घड़ी अच्छी है. And this watch is bad. ये घड़ी अच्छी नहीं है. तो good quality, bad quality. That is also adjective of quantity. The next type of adjective we have, that is adjective of quantity. Adjective of quantity tells us about the exact amount of something, even of someone. ये हमें किसी चीज के बारे में वो सही मकदार बताता है, या लोगों के बारे में या चीजों के बारे में, दोनों ठीक है. Someone or something. For example, if I say I ate some rice, here some is what? Adjective of quantity, क्योंकि ये सब हमें मकदार दिखाते हैं. मैंने चावल, एटमीन का ना, मैंने चावल खाया. So here some is what? Adjective of quantity, हमें मकदार. So some is quantity. He brought enough. He brought enough goods. उसने काफी सामान लाया. So enough is what? Adjective of quantity. हाँ, that is adjective of quantity. ये हमें मकदार दिखाते हैं. कितना? Enough, काफी, पूरा, sufficient. He brought or buy, he bought much goods, ज़्यादा. So some, enough, much. some मैंने चावल का हिस्सा नहीं, लेकिन कितने का है ये तो. Little. So कितने? Some, कुछ चावल का है, ज़्यादा नहीं. ठीक है? Is it clear or not? Okay. Similarly, we have adjective of number. Adjective of, do you have extra marker? Okay. We have adjective of number. Adjective of number tells us about the exact number, the exact strength of some people or some things. ये हमें सही तादाद के बारे में बताते हैं. वो मकदार के बारे में. Adjective of number was telling about मकदार, quantity, and it is talking about तादाद, strength. ये हमें strength के बारे में बताता है, तादाद के बारे में. ये हमें तादाद के बारे में बताता है. इसमें इंक डाल देंगे, रुकिए प्लीज. Is it clear?
Okay. So let me give you some example. There are 30 students. 30 students in the class. There are 30 students in the class. So now you see 30 is what? Yes, so it is adjective of number. There are 20 students, 30 students, 40 students, and this adjective of number has been divided into two types. ये adjective of number असल में दो types में तकसीम किया गया है. एक है wait please, I'm recording. So we are talking about the first one is ordinal, and the next one is cardinal. It's also called cardinal is also called numeral adjective. Numeral, you write it. For ordinal, ordinal means tell us about the order. You know order? 1, 2, 3. If I say he came first, so first, second, third, fourth, it is ordinal adjective. It tells about order. Understand? But if I say 30, 40, 60, it is numeral. It tells about number. It is from mathematics. समझ आए? So not need for cardinal, just ordinal and numeral. बात समझ में आई या नहीं? Okay. It is extra, but I shared with you. After that, we have demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Thank you. We have demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective which is used to point out someone or something. ये भी किसी चीज की तरफ इशारा करता है या किसी को इशारा करता है, एंड दे आर फॉरेन नंबर्स, और ये तादाद में फोर है. लेकिन अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? डिफिनेशन तो सेम है ना, लेकिन अब आप दोनों में सिर्फ फर्क करेंगे एग्जांपल्स में, बाकी डिफिनेशन दोनों का सेम है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग टू सेंटेंसेस. I'm writing two sentences. That was my book. That was my book. One sentence. Another is that book was mine. Now you tell me what is demonstrative adjective and demonstrative pronoun in these two sentences. कि दोनों sentences में demonstrative pronoun कौन सा है और demonstrative adjective कौन सा है? Who will tell me? शाबाश. Okay, let me tell you. Here that book. So here that is demonstrative adjective. Why? Because I told you that adjective come before a noun. कि एडजेक्टिव अमूमन नाउन से पहले आता है, तो यहां ये एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है, इसलिए ये दैट क्या है? ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. लेकिन यहां ये दैट नाउन से पहले नहीं आया है, इसलिए ये क्या है? ये एडजेक्टिव ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. that was my book, so here that is demonstrative pronoun, and that book was mine, here that is demonstrative adjective, because यहाँ that जो है वो book से पहले आया है. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन से या नाउन से पहले आता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहले नहीं आता. अगरचे दोनों की तरफ इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में वो नाउन से प्रोनाउन से पहले, खासतौर पर नाउन से पहले वो
एडजेक्टिव आता है। ये दैट हमारे साथ एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया है, इसलिए ये मुख्तलिफ है किससे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। Very good. This bag, this is what? This bag. So here this bag is demonstrative adjective and this is my bag. So here this bag is demonstrative pronoun. मेरे ख्याल में अब कोई मुश्किल नहीं है ना? Okay. Quickly, शाबाश. Done? We have the last one, and by tomorrow we will discuss articles. It is also the type of adjective. Interrogative. Interrogative adjective. What is interrogative adjective? Interrogative adjective is an adjective which is used to ask question. ये वो adjective है जो question पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये दोनों सेम टू सेम है with interrogative pronoun. Definition दोनों का सेम है. Interrogative adjective is used to ask question and interrogative pronoun is also used to ask question. Definition तो सेम है ना, लेकिन अब फर्क क्या है? फर्क ऐसा है जिस तरह हमने demonstrative adjective demonstrative pronoun में कहा. देखिए, apply से whose, yes, whose class is this? Whose class is this? Let me write a bit easy sentence. For example, if I say, who are you? Who are you का मतलब क्या है? तुम कौन हो? If I say who you are, who are you? Who are you का मतलब क्या है? तुम कौन हो? And who you are, तुम कौन हो? दोनों सेम है ना क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ who जो है, who you are, here who you is interrogative. Yes, interrogative adjective, because here who has come before noun. यहाँ who जो है pronoun या noun से पहले आया है. या who असलम is, who असलम is, असलम कौन है? who असलम is, who असलम is. So यहाँ who जो है हमारे साथ interrogative एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले आया है, लेकिन यहाँ हु आर यू ये हमारे साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ ये नाउन से पहले नहीं आया है या प्रोनाउन से पहले नहीं आया है. एनी क्वेश्चन? द लास्ट वन, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑफ डिग्री. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री. Adjective of degree tells us about the proper degree. ये हमें सही मिकदार के बारे में बताता है, सही डिग्री के बारे में बताता है. Adjective of degree tells us that how much someone or something has the good quality or bad quality. ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री असल में हमें ये बताता है ना कि कोई क्वालिटी रखता है, कोई क्वालिटी रखता है, गुड क्वालिटी रखता है और बैड क्वालिटी रखता है, लेकिन कितना रखता है, कितना मिकदार है. जिस तरह उसने क्वेश्चन किया कि आई एम ईटिंग राइस, सम राइस फॉर एग्जांपल, समझ आई, लेकिन हाउ मच.
So adjective of degree tells us about if someone has quality or quantity. Clear? So how much or how many? कितना मिकदार? So answer, for example, he is intelligent. He is. अब देखिए वो ज़हीन है. वो क्या है? कितना ज़हीन है? हाँ, very. He is very intelligent. तो ये very हमारे साथ क्या है? डिग्री है. एक एडजेक्टिव से पहले दूसरा एडजेक्टिव आया है. इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, वेरी भी एडजेक्टिव है, लेकिन यह इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्या है? यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. क्वालिटी, ये हमें क्वालिटी बताता है, लेकिन क्वालिटी को मजीद वाज़ेह करता है. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री एक क्वालिटी को मजीद वाज़ेह करता है या एक क्वांटिटी को. मसलन ही इज इंटेलिजेंट. कितना इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट. सो यहां वेरी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री. अगर मैं कहूं ना ही इज अ बिट इंटेलिजेंट, ही इज अ बिट इंटेलिजेंट. व्हाट इज मीन बाय अ बिट? हाँ, थोड़ा सा, जरा सा, वो जरा सा ज़हीन है. सो हियर अ बिट इज एडजेक्टिव ऑफ डिग्री. If I say the topic is, the topic is interesting. Interesting क्या है? गुड क्वालिटी है ना. टॉपिक अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है? वेरी इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. क्लियर? अगर टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो मोस्ट इंटरेस्टिंग. अब यह बस लिटिल डिस्कशन करते हैं ना कि you know there are 3 degrees. There are 3 degrees. For example, we have past degree, then comparative degree and superlative. See, good, better and best. These are also called adjective of degree. ये डिग्री है हमारे साथ. क्या है? डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल की 50, 100 में 50. सो यू सेड इट, ही इज अ गुड स्टूडेंट. ही इज अ गुड स्टूडेंट. फर्स्ट डिग्री. अगर आप कहते हैं ही इज बेटर स्टूडेंट, ही इज बेटर स्टूडेंट, मतलब मोर देन 70. इफ यू से दैट ही इज बेस्ट, इट मीन्स ए 1 grade more than 80. Is it clear? So it is a degree, good, better, best. हमारे साथ ऐसे अल्फाज है एडजेक्टिव में जिसके साथ हम सिर्फ डिग्री लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसे अल्फाज है जिसके साथ हम डिग्री नहीं लगा सकते. अब हमारे साथ इंटरेस्टिंग है. देखिए, इंटरेस्टिंग हमारे साथ क्या है? जो एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव है. अब ये इंटरेस्टिंग के साथ ये आप नहीं कर सकती द टॉपिक इज गुड इंटरेस्टिंग या बेटर इंटरेस्टिंग या बेस्ट इंटरेस्टिंग. समझ आई? तो इसके साथ हम 4 अल्फाज लगा सकते हैं. या हम लगा सकते हैं कि वेरी, या लगा सकते हैं कि सो, या लगा सकते हैं अ बिट, या लगा सकते हैं कि मोर, या लगा सकते हैं कि मोस्ट. आमतौर पर मोर या मोस्ट लगाते हैं वो एडजेक्टिव जिनकी डिग्री आज नहीं है. हम उनके साथ या वेरी लगाते हैं, सॉरी, या मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं. जैसा कि इंटरेस्टिंग, ये ऐसा एडजेक्टिव है ना जिसकी कोई डिग्री नहीं है. और फिर एडजेक्टिव में हमारे साथ एक रेगुलर एडजेक्टिव है और दूसरा इर्रेगुलर है. अब रेगुलर एडजेक्टिव क्या है? आपको पता है रेगुलर एडजेक्टिव के बारे में? हम रेगुलर एडजेक्टिव को वो एडजेक्टिव को कहते हैं ना जिसका डिग्री होता है और सेम डिग्री, जिसका सेम डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट सम एग्जाम्पल. इफ आई से क्लेवर, क्लेवर मीन होशियार. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. स्मॉल, 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 स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. तो एक एडजेक्टिव है रेगुलर एडजेक्टिव
विच हैज द सेम सेकंड एंड थर्ड डिग्री, जिसका दूसरा और तीसरा डिग्री तकरीबन एक जैसे हो। मसलन ये एक जैसे लगता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलर। और इरेगुलर वो है जिसका दूसरा और तीसरा एक जैसी ना हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि गुड गुड और गुड, इसलिए गलत है। ऐसा ना हो कि गुड गुड और गुड, नहीं, गुड बेटर बेस्ट। हम कहते हैं गुड, हम कहते हैं बैड एंड वर्स्ट, वर्स एंड वर्स्ट, सबसे बदतर। तो ये हमारे साथ क्या है, डिग्री। तो बहरहाल खुलासा ये है कि बाज़ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो डिग्री नहीं लेते, जिसका कोई डिग्री नहीं है, हम उनके साथ या मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। और जिनकी डिग्रियां है तो हम खुद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्मॉलर देन मी, वो मुझसे छोटा है। ही स्मॉलर देन मी, ही स्मॉलर देन मी। तो यहां मैंने कौन सा डिग्री लगाया, कंपैरेटिव। क्या लगाया, सेकंड डिग्री। लेकिन अगर मैं कहता हूं ना, ही इज डैश देन मी, इंटेलिजेंट देन मी, ही इज इंटेलिजेंट देन मी, तो आप उसके साथ आप डिग्री लगाए, बेटर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, ये वो एडजेक्टिव है जिसका कोई डिग्री नहीं। तो वो एडजेक्टिव जिसका कोई डिग्री नहीं है ना, समझ आइए, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसको हम बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल भी कहते हैं, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल। तो लिहाजा इसका कोई डिग्री नहीं है, तो हम उसके साथ अगर थोड़ा सा ज़हीन है तो मोर इंटेलिजेंट लगाएंगे, अगर ज्यादा ज़हीन है तो मोस्ट इंटेलिजेंट लगाएंगे। ही इज मोर इंटेलिजेंट और ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, या आप ही इज लिटिल इंटेलिजेंट और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये लगा सकते हैं। अगर कोई मुश्किल है मैं दोबारा दोहराऊंगा, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव आसान है, मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज हो गई, ये सिर्फ डिग्रीज में। मैंने टाइप्स तो क्लियर है आपको ना, डिग्री में सिर्फ कंफ्यूजन है। तो मैंने कहा कि हमारे साथ एडजेक्टिव में फिर हम डिवीजन कर सकते हैं कि एक है रेगुलर एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, इर्रेगुलर। रेगुलर एडजेक्टिव वो है डिग्री के लिहाज से, डिग्री के लिहाज से रेगुलर एडजेक्टिव वो है जिसके हमारे साथ सेम डिग्रियाज होते हैं, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। और इर्रेगुलर वो है जिसकी डिग्रियां सेम नहीं है। मसलन मैंने कहा कि इंटेलिजेंट, ठीक है, या हम कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, हम कहते हैं कि नॉलेजेबल, वो नॉलेजेबल आदमी है, वो काबिल इल्म आदमी है ना, इल्म उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं वेरी नॉलेजेबल, मोर नॉलेज। तो जिनके पास जिनकी डिग्रियां है तो हमें और वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो स्मॉलेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं है स्मॉलर लगाएंगे, थोड़ा सा है स्मॉल लगाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव्स जिनकी कोई डिग्रियां वगैरह नहीं है तो हम उनके साथ ये ऑप्शन लगा सकते हैं, या मोर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे, या वेरी लगाएंगे या सो लगाएंगे या लेटर लगाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ? योर ड्यूटी इज टू गो होम, work on it, make sentences, and also pondering over it. If you have any question, ask me. If I'm not present here, no problem, I'm available every time on WhatsApp, you could ask me.